بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ لاہور میں واٹر لیول کی صورتحال انتہائی خراب۔ ہائی کورٹ کا واٹر میٹرز کی تنصیب کے لیے ایمرجنسی لگانے کا عندیہ، عدالت کا واسا کی کارکردگی پر عدم اطمینان، پی ایچ اے کے زیر زمین پانی کے استعمال پر اظہار ناراضی۔ ماحول دوست عمارتوں کو ٹیکس ریلیف دینے کی پالیسی بنانے کا حکم جاری کیا ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے کہا پیٹرول رکشوں کو ای رکشوں میں بدلنے پر ترغیب دینا ہوگی۔ انسداد اسموک کیس کی سماعت 21 مارچ تک ملتوی۔ جسٹس شاہد کریم نے اسموک تدارک کیس کی سماعت کی۔ ممبر ماحولیاتی کمیشن نے بتایا کہ پی ایچ اے باغات اور پلانٹائزیشن کو نہری پانی کے بجائے زیر زمین پانی لگ رہا ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے اس پر اظہار ناراضگی کیا۔ ممبر ماحولیاتی کمیشن نے بتایا کہ واسا میٹر لگانے کے حوالے سے کام کر رہا ہے، ابھی تک 1000 میٹر لگانے کا آرڈر دیا ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے واسا واٹر میٹر کی تنصیب میں کوئی قابل ذکر کارکردگی نہیں دکھا سکا۔ جسٹس شاہد کریم نے ایل ڈی اے کو ماحول دوست عمارتوں کی سرٹیفکیشن کے حوالے سے پالیسی رپورٹ آئندہ سماعت پر پیش کرنے کا اور ماحول دوست عمارتوں کو ٹیکس ریلیف کے حوالے سے پالیسی بنانے کا بھی حکم دیا۔ عدالت نے پی ایچ اے کے نہری پانی کے خالی نہ چلنے پر اظہار برہمی کرتے ہوئے کھالے بحال کرنے کا حکم دیا۔ پنجاب حکومت کے وکیل نے بتایا کہ حکومت الیکٹرانک وہیکلز چارجنگ انفراسٹرکچر بنانے پر کام کر رہی ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے کہا حکومت کو پیٹرول رکشوں کو الیکٹرک رکشاز میں بدلنے پر کوئی معاشی ترغیب دینا ہوگی۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل اسد علی باجوہ، پنجاب کے لاء افسر اور ممبر ماحولیاتی کمیشن پیش ہوئے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات علی اعجاز، ٹریفک، ایل ڈی اے، پی ایچ اے کے نمائندے پیش ہوئے۔ مزید سماعت 21 مارچ تک ملتوی کر دی گئی۔ کیمرہ مین خالد ملک کے ہمراہ ملک محمد اشرف، سٹی 42۔ بی آر بی کینال ٹریٹمنٹ پلانٹ منصوبہ گلے کی ہڈی بن گیا۔ منصوبے کی لاگت میں 33 ارب روپے کا اضافہ، 21 ارب 4 کروڑ 57 لاکھ کا منصوبہ 54 ارب 13 کروڑ 84 لاکھ تک جا پہنچا۔ بی آر بی واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ مارچ 2023 میں مکمل ہونا تھا، منصوبہ اب جون 2030 میں مکمل ہوگا۔ واسا حکام کی عدم دلچسپی یا لاپرواہی، منصوبوں کی لاگت کاغذوں میں ہی بڑھنے لگی۔ بی آر بی کینال پر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی لاگت میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا گیا۔ 21 ارب 4 کروڑ 57 لاکھ کا منصوبہ 54 ارب 13 کروڑ 84 لاکھ تک جا پہنچا۔ منصوبہ اب جون 2030 میں مکمل ہونے کا دعویٰ کیا گیا۔ 30 اکتوبر 2019 کو ایکنک نے منصوبے کی منظوری دی تھی۔ واٹر پمپ سٹیشنز پر 74 کروڑ 70 لاکھ روپے خرچ ہونے کا تخمینہ لگایا گیا۔ منصوبے میں ٹینک پر 94 کروڑ 40 لاکھ خرچ ہونے کا تخمینہ لگایا گیا۔ منصوبے کی ابتدائی لاگت میں 33 ارب کے اضافے کیا گیا تھا۔ منصوبے کے تحت زیر زمین سائفن واٹر انفراسٹرکچر بنایا جائے گا۔ پلانٹ، پمپنگ سٹیشن، ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک بنائے جائیں گے۔ واضح رہے کہ بی آر بی واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ منصوبہ مارچ 2023 میں مکمل ہونا تھا۔ واسا حکام کی افسر شاہی 8 سال سے زیر تعمیر واسا ہیڈ آفس کا ڈیزائن پسند نہ آیا، اپنا ہی منظور شدہ ڈیزائن تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 40 کروڑ کی ابتدائی تخمینہ لاگت کا منصوبہ واسا کی نااہلی کے باعث 3 گنا لاگت پر جا پہنچا۔ ڈیزائن تبدیلی کا ملبہ واسا اتھارٹی کو ایک فلور دینے پر ڈال دیا گیا۔ پرانا اور دقیانوسی ڈیزائن ہے، اسے تبدیل کیا جائے گا۔ واسا حکام کی افسر شاہی 8 سال سے زیر تعمیر واسا ہیڈ آفس کا ڈیزائن اور اندرونی آرکیٹیکچر پسند نہ آیا۔ واسا ہیڈ آفس کا انٹیریئر آرکیٹیکچر تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ 40 کروڑ کے ابتدائی تخمینہ لاگت کا منصوبہ واسا کی نااہلی کے باعث 2 گنا سے 3 گنا لاگت پر جا پہنچا۔ واسا نے 2016 سے 17 میں واسا ہیڈ آفس جوہر ٹاؤن پر کام شروع کیا۔ چند روز قبل واسا حکام نے اندرونی ڈیزائن کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ ذرائع کے مطابق ڈیزائن تبدیل کی مہر لگوانے کے لیے ہال میں تعینات ڈی جی واسا کو دورہ کرا کر اپنے فیصلے کی توثیق کرائی گئی۔ اندرونی ڈیزائن تبدیلی کا ملبہ واسا اتھارٹی کو ایک فلور دینے پر ڈال دیا گیا۔ واسا ہیڈ آفس کا گرے سٹرکچر مکمل، جبکہ دیگر تنصیبات لگنا باقی ہیں۔ شہر لاہور کے موسم کی تو لاہور میں موسم کے رنگ سہانے، بوندا باندی کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی 16 مارچ تک بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ شہر کا موسم سہانا ہے۔ تازہ ترین اپڈیٹس لیں گے ابراہیم قریشی سے۔ جی ابراہیم، آگاہ کیجیے گا۔
जी बिल्कुल, शहर लाहौर का मौसम जो है वो इस वक्त काफ़ी सुहाना है। ठंडी ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जो है वो जारी है, जबकि अहले लाहौर के चेहरे जो है वो खुशी से खिलखिला उठे। अहले लाहौर के चेहरे पे ये मौसम जो है वो मुस्कान बिखेरता नजर आता है, जबकि माह रमज़ान मुबारक में इस कदर सुहाना और इस कदर प्यारा मौसम मिलना जो है वो अहले लाहौर के लिए किसी भी बड़ी नेमत से कम नहीं। अगर बात कर लें अहले लाहौर की, तो अहले लाहौर जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं, और जबकि दर्जा हरारत इस वक्त जो है वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि उसके बाद अगर हम बात कर लें हवा में नमी के तनासुब की, तो हवा में जो नमी का तनासुब है वो इस वक्त 79% जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। और जबकि इसके साथ साथ जो है वो 10 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से जो है वो हवा चलने का सिलसिला जो है वो जारी है। और उसके साथ साथ यहाँ पर ठंडी हवा चलने से जो है वो मौसम काफ़ी ज़्यादा ना सिर्फ खुशगवार हो गया, बल्कि हवा में जो है वो हल्की हल्की खनकी भी जो है वो आ चुकी है। मौसम में जो है वो ठंडक का होना जो है वो बेहद ज़रूरी था, जो कि अब जो है वो अहले लाहौर को महसूस हो रहा है कि ठंड जो है वो वापस लौट आई है, क्योंकि दिन भर जो है वो उनको काफ़ी ज़्यादा गर्मी का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जी ठीक है इब्राहिम, बहुत शुक्रिया आपका। मुआहदे के बरक्स सोलर से इजाफी बिजली की पैदावार, कानून शिकनी करने वालों की निशानदही, क्रैकडाउन की तैयारियां, बेशतर बड़े सार्फिन ने कनेक्शन के बाद इजाफी सोलर पैनल नस्ब किए। कंपनी के M&T सर्कल्स की टीमों ने कनेक्शंस की चेकिंग की थी। सार्फिन ने कनेक्शन हासिल करने के बाद इजाफी सोलर पैनल्स नस्ब किए। शहरियों की जानिब से मुआहदे के खिलाफ सोलर बिजली की पैदावार करने का इंकशाफ। कंपनी सार्फिन का रिकॉर्ड मुरतब करके कनेक्शन मुंतका करने के नोटिस भिजवाने का फैसला कर लिया। लेस्को में इजाफी बिजली की पैदावार करने वाले सार्फिन के कनेक्शंस की निशानदही कर ली गई है, क्योंकि कंपनी के M&T सर्कल्स की टीमों ने कनेक्शंस की चेकिंग की थी। वाज़ेह रहे कि हुकूमत की जानिब से एक्सपोर्ट यूनिट्स की कीमत कम होने से खिलाफ वर्जी बढ़ेगी। कम कीमत की वजह से सार्फिन ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स एक्सपोर्ट करेंगे ताकि बिलों में फायदा उठाया जा सके। हेल्थ के दोनों महकमों में रिश्वत देकर छुट्टियां लेने का इंकशाफ हुआ है। नर्स सलमा शहजादी और ड्राइवर लाल मोहम्मद को फारिग करने का हुक्म जारी। इंक्वायरी में 6 मुलाजमीन को पीडा के तहत सजा। नर्स आयशा ने जाली वीजे दस्तावेजात महकमे स्पेशलाइज्ड को जमा कराए। महकमे सेहत में अजब करप्शन की गजब कहानी। दोनों महकमों में रिश्वत देकर छुट्टियां लेने का इंकशाफ। अलग अलग इंक्वायरीज में 6 मुलाजमीन को पीडा एक्ट के तहत सजा दे दी गई। नर्स आयशा ने जाली वीजे मुलाजमत के दस्तावेजात महकमा स्पेशलाइज को जमा कराए। आयशा को महकमे के कंप्यूटर ऑपरेटर रऊफ गौरी ने जाली दस्तावेजात बनाकर दिए। रऊफ गौरी ने जाली वीजे के दस्तावेजात की तैयारी के एवज 1 लाख रुपए रिश्वत ली। रऊफ गौरी ने राना जाहिद के साथ मिलकर आयशा अहमद की जाली दस्तावेजात तैयार करवाई। इंक्वायरी के बाद आयशा अहमद, रऊफ गौरी और राना जाहिद को मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया गया। जिना अस्पताल की 2 नर्सेज ने भी छुट्टी के लिए एक मुलाजिम लाल मोहम्मद को रिश्वत दी। महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर के मुलाजिम लाल मोहम्मद ने 2,67,000 रिश्वत ली। रिश्वत देने वाली नर्स महविश शफीक की 1 साल की सर्विस जब्त करने का हुक्म दे दिया गया। नर्स सलमा शहजादी और ड्राइवर लाल मोहम्मद को नौकरी से फारिग कर दिया गया। नर्स सलमा शहजादी और ड्राइवर लाल मोहम्मद के खिलाफ केस एंटी करप्शन को भिजवाया जाएगा। सामनी तालीमी बोर्ड के असातिज़ा निगरान अमले के लिए बड़ा रिलीफ। इम्तिहानी पर्चे चेक करने वाले असातिज़ा पर 10% टैक्स गलत करार। विफाकी टैक्स मोहतसिब ने टैक्स कटौती को गलत करार दे दिया। सानवी तालीमी बोर्ड के असातिज़ा और इम्तिहानी मराकज़ के निगरान अमले को बड़ा रिलीफ मिल गया। विफाकी टैक्स मोहतसिब ने असातिज़ा और निगरान अमले से टैक्स कटौती को गलत करार दिया। दर्जनों असातिज़ा इम्तिहानी सेंटर्स के अमले की शिकायत पर फैसला जारी किया गया। विफाकी टैक्स मोहतसिब ने इम्तिहानी पर्चे चेक करने वाले असातिज़ा और इम्तिहानी सेंटर के सुपरिटेंडेंट पर भी 10% टैक्स को गलत करार दे दिया गया। नॉन फाइलर के तहत 22% टैक्स लेने के खिलाफ दरख्वास्त जमा करवाई गई। असातिज़ा अमले के मुआवजे पर खिदमात की शिक के तहत कटौती नहीं हो सकती। विफाकी टैक्स मोहतसिब आसिफ जाह का कहना है कि इम्तिहानी अमल की निगरानी पर्चों की मार्किंग तालीमी निजाम का लाजमी हिस्सा है। अलग से खिदमात की शिक की बजाय तनख्वाहों में जम करके टैक्स लिया जाएगा। कराची से लाहौर आने वाली PIA की परवाज के जहाज का बगैर व्हील लैंडिंग का ये मामला है। PIA फ्लाइट 306 का लापता व्हील मिल गया। PA लापता व्हील जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रिमोट पार्किंग बे के पास से मिला है। व्हील शॉप टेक्नीशियंस ने ग्राउंडेड 777 जहाज के लैंडिंग गियर के करीब से व्हील मिलने की इतला दी, जबकि व्हील के जहाज से अलहदा होने की वजह से किसी जानी या माली नुकसान के शवाहिद नहीं मिले। सूबाई मोटर गाड़ियां तरमीमी बिल 2025 पंजाब असम्बली से मंजूर। फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी बिल, मुसवदा कानून, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप समेत दीगर बिल भी मंजूर हो गया।
पंजाब असम्बली का इजलास 10 मिनट की ताखीर से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत शुरू हुआ। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि धर्मपुरा पुल पर पेश आने वाला वाकया अफसोसनाक है। डाला कल्चर खत्म होना चाहिए। सोचता हूँ प्रोटोकॉल वापस कर दूं। मैं कभी ये सोचता हूँ कि जो मेरे पास पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, स्पीकर का सेरेमोनियल ऑफिस है, मैं इसके साथ जो एस्कॉर्ट्स चलती हैं, तो मैं इनको गिव अप कर दूं। और मैं सोचता इस तरह से हूँ कि मैं इनको, जब मैं बाजार से गुजरता हूँ या किसी सड़क से गुजरता हूँ, तो मैं लोगों की आंखों में नफरत और हकारत पढ़ता हूँ। एंड आई एम सीरियसली टेलिंग यू कि अगर मुझे सिर्फ स्पीकर के ऑफिस के इस एहतराम का तकाजा ना हो, तो मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में किसी तौर पर कोई प्रोटोकॉल नहीं लेता। पंजाब असम्बली के इजलास में सूबाई मोटर गाड़ियां तरमीमी एक्ट 2025, मसवदा कानून तरमीम नोटरीज 2025, फ्रांसिक साइंस अथॉरिटी बिल 2025, मसवदा कानून पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और मसवदा कानून सहूलत बाजार अथॉरिटी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। बिल्स वजीर पार्लिमानी अमूर मुश्तबा शुजाउर रहमान ने पेश किए। कानून साजी के दौरान अपोजिशन की तरामीम के मामले पर मुश्तबा शुजाउर रहमान गुस्सा में आ गए। जज्बात में अपोजिशन को जोकर करार दे दिया। डिप्टी स्पीकर ने वजीर पार्लिमानी अमूर के अल्फाज हज़फ कर दिए। अपोजिशन की जानिब से बिल्स पर तमाम तरामीम पेश की गई जो कि मुस्तरद कर दी गई। अपोजिशन रुकन अहमद भट्टी का कहना था कि मुश्तबा शुजाउर रहमान को अल्फाज वापस लेने चाहिए। अपोजिशन अभी तक जो बिल हमने उस दिन भी जो किए हैं, उनको पता ही नहीं है जो वो बात कर रहे होते हैं। अमेंडमेंट पे तो बात ही नहीं करते हैं। इस तरह हाउस का माहौल खराब होगा। इस तरह हाउस का माहौल खराब होगा मियां साहब। मैं देखें स्पीकर साहब, फिर मैं बात ये कर रहा हूँ कि सारे लोग ऐसे नहीं, मगर मेजॉरिटी यहाँ पे बस मियां साहब ना करें ना इस तरह। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप अगर अहमद साहब तैयारी करके आए हैं, भट्टी साहब, तो बिल बड़ी अच्छी बात है। आप काम को क्यों तोल पकड़ रहे हैं? डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ ने एजेंडा मुकम्मल होने पर पंजाब असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। कैमरा टीम के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42 लाहौर। रेलवे स्टेशन से मुल्हिका शाहराहों पर तजावुज़ात की भरमार, सड़क के दरमियान गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड कायम, मुसाफिरों को मुश्किलात। मजीद अहवाल जानेंगे उमैर अफजल से। जी उमैर। आज बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ रेलवे स्टेशन के बाहर, और यहाँ पर पंजाब हुकूमत और एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड की जो कम तर कार्रवाइयाँ हैं, तमाम तर कोशिशें जो हैं वो नाकाम दिखाई देती हैं। मसरूफ़ तरीन शाहरा है और रेलवे स्टेशन के बाहर बेहंगम पार्किंग और चिंची रिक्शा की जो है वो तजावुज़ात की वजह से जो सड़क है वो इस वक्त खासी मुतासर दिखाई दे रही है। जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं उनके खुद साख्ता पार्किंग स्टैंड्स सड़क के दरमियान तक मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरने वाले जो मुसाफिर हैं उन्हें खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ से गुजरने वाले राहगीर हों, रेलवे स्टेशन आने वाले जो शहरी हों, उन्हें ट्रैफिक जाम जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है। शहरियों का इंतज़ामिया से ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर तजावुज़ात के खात्मे के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ ताकि शहरियों को दरपेश मसाइल से फौरी तौर पर छुटकारा मिल सके। ठीक है उमैर, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।